Good morning student. Today we are going to learn EVS 1 lesson number 6 variety in food मतलब खाने के different types. Okay. So we will learn in this lesson different types of food, ingredients, vegetables. Okay. All these we are going to learn in this. तो आप vegetable you eat vegetables also, fruit also, and some ingredients you make that food and eat. Okay, so let's see how they make food. Okay, from vegetable which bhaji we make. Okay, from ingredient which dishes we make, we will learn in this lesson. Okay, from ingredients okay, we get from which places. Okay, now we use the vegetables and grains bought from the market to prepare the different dishes in our meals. Let us carry out the following activities related to food. Okay, we eat vegetables also and grains also. Okay, and हम वो कहाँ से खरीदते हैं? Okay, वो कहाँ से आते हैं? We have to learn in this lesson. Find out which grain and vegetable does your family buy from the market. अभी आपको क्या करना है, आप जस्ट मम्मी के साथ या डैडी के साथ मार्केट जाना है एंड यू हैव टू सी कि आपके मॉम डैड मार्केट से क्या क्या खरीदते, इंग्रेडिएंट कहाँ से खरीदते, फ्रॉम देन from vegetable they buy from market. Okay, then ingredients they buy from shop. Okay, so you see that they purchase thing from different shop. Okay, as shown below, make a table of the different dishes prepared from the different grains or vegetable at home. Now you have to observe and make a list कि different ingredients से different चीजें बनाई जाती है. What they made from that ingredient, you have to make a list. Now look at this chart. Here is a one ingredient means rice. यहाँ पे क्या लिया है, rice. Now राइस से इधर देखो क्या डिशेस मेड, कौन सी डिशेस बनाई गई है राइस से. भाकरी, चावल की भाकरी आप खाते हो? यस, इट्स माय फेवरेट. योर ऑल्सो फेवरेट. कौन कौन खाता है चावल की भाकरी? यस, यू डू यू लाइक? यस. इडली, ओ इडली तो आप सब लोग की फेवरेट है. चटनी सांभर मिल गया और इडली मिल गया तो आप सब लोग मजे में खाते हो. यस, आई ऑल्सो ईट. देन राइस, राइस तो हम डेली हमारे लंच या डिनर में होता ही है. ओके, वन टाइम वी ईट राइस ऑल्सो. सो राइस, राइस से देखो कितनी डिशेस मेड की, 3 डिशेस दे मेड, 3 डिशेस फ्रॉम राइस. तो यहाँ पे टोटल नंबर लिखा है 3. ओके, नाउ look at your list. If your green vegetable is used to make more than one food item dish, write the total number of such items in the next column. Compare your list with that your friends. अभी आपको क्या करना है, ऐसे आप दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ले सकते हैं और उससे आप कौन सी चीजें बनाते हैं वो आपको लिखना है. In your table, add the food that are in the list but not yours. For example, अब यहाँ पे दिया है अगेन, वहाँ पे क्या लिया है, राइस इंग्रेडिएंट लिया है. देन राइस से डिफरेंट फूड आइटम्स, राइस से फिर उन्होंने क्या बनाया यहाँ पे, यस मोदक. मोदक खाया होगा आप लोग ने. यस, गणपति बापा जब आते हैं तो हमें सबके घर में प्रसाद में मोदक खाने मिलता है और ये बहुत टेस्टी होता है. एंड डोसा, डोसा आप लोग का फेवरेट है. जब भी आपका मन होता है आप मम्मी से पैसे लेते हो और कहाँ खाने पहुंच जाते हो, डोसा, मेंदी वड़ा, इडली खाने पहुंच जाते हो. तो देखो यहाँ पे राइस एक ही इंग्रेडिएंट है लेकिन राइस से कितनी सारी चीजें बनी ना, पता चला आपको. एक इंग्रेडिएंट्स और कितने डिशेस है, 5 डिशेस है. ओके, you will realize that various dishes can be made from the same ingredients. Even there is a variety in the dish, the basic ingredient remain the same. In the example above, we saw various preparation of rice. Note that there is a diversity in the food item of the different state or different country.
तो डिफरेंट, जितने डिफरेंट स्टेट रहेंगे, डिफरेंट कंट्री रहेगी, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपको वन इंग्रेडिएंट के डिफरेंट डिफरेंट डिशेस देखने मिलेंगे. ओके, use your brain power. In every region there is a one staple food. What is the reason for that? आपने देखा होगा हर एक प्लेस पे, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में क्या है, स्टैपल फूड होता है. जैसे कि हमारा स्टैपल फूड क्या है, दाल भात चपाती भाजी लोंजा पापड़, ओके, और खीर, मतलब कुछ तो स्वीट में, या फिर गुलाब जामुन. तो वैसे ही हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में क्या होता है, एक स्टैपल फूड होता है जो डेली वे में खाते हैं, एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ. तो जो स्टैपल फूड जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है एंड इज हेल्दी फॉर आवर हेल्थ. ओके, सो हर एक रीजन में क्या है, कंट्रीज में, स्टेट में स्टैपल फूड डिफरेंट डिफरेंट होता है. ओके, नाउ लुक एट दिस मैप, इंडिया मेजर फूड क्रॉप्स. ये किसका मैप है, आपको सब दिखाई दे रहा है? यस, इट इज इंडिया मैप. ये किसका मैप है, इंडिया का मैप है. स्टडी द मैप गिवन अबाव. हमें क्या बोला, ये मैप जो है स्टडी करने बोला है. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री. स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप वेरियस इन द डिफरेंट रीजन. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, look at this index, rice, wheat and jawar. There are 3 ingredients and they are divided in the state. Let's see which food crop is grown on a large scale in the coastal region. कौन सा फूड है जो कोस्टल रीजन में ज्यादा होता है. कोस्टल रीजन मतलब किनारा, समुद्र के किनारे. तो हमने देखा कि किनारे पे सबसे ज्यादा कौन सा फूड ग्रोन हुआ है, यस, राइस. कौन सा, राइस. देखो कोस्टल, इसे बोलते हैं कोस्टल रीजन. ओके, विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया भी, नॉर्थ इंडिया कहाँ है, तो हम यहाँ पे हमें दिया है कंपास. हमने बिफोर लेसन में पढ़ा था, कंपास के थ्रू हम we can find out where is the north, where is the south, where is the east and where is the west. So this is the east, this is the west, this is the south and this is the north. तो ये क्या है, नॉर्थ एरिया है. तो नॉर्थ एरिया में कौन सा सबसे ज्यादा फूड ग्रो हुआ है, यस, व्हीट एंड जवार. व्हीट एंड जवार सबसे ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है. विच इज द मेजर फूड क्रॉप इन द सेंट्रल रीजन. सेंट्रल रीजन में कौन सा ज्यादा फूड, मतलब फूड ग्रो हुआ है, यस, जवार. एंड व्हीट थोड़ा ही है लेकिन जवार क्या है, ज्यादा है. Rice is grown on a large scale in the southern part of the India. Why is this so? Rice मतलब चावल क्या है, साउथ पार्ट में ज्यादा होता है. बिकॉज राइस के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, हॉट मतलब गर्म, और हवा थोड़ी गर्म होनी चाहिए और बहुत जोरों की बारिश होनी चाहिए. ऐसा क्लाइमेट रहेगा तभी वहां पे क्या होता है, चावल उगता है. तो इसलिए, और वहां की मिट्टी भी अलग होती है, इसलिए जहां पर चावल के लिए अलग टाइप की मिट्टी चाहिए, देन वहां का क्लाइमेट डिफरेंट चाहिए, तो ही चावल उग सकता है. तो ये जो क्लाइमेट है वो कौन से साइड है, साउथ साइड है. इसलिए साउथ साइड देखो चावल ज्यादा होता है. इसलिए आपने साउथ साइड देखा होगा, लोग ज्यादा करके चावल की इडली, डोसा, उप्पम, क्या अप्पम की, हाँ अप्पम बनाते हैं, राइट, चावल से. दे मेक लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस फ्रॉम राइस. राइस से ही वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं, पायसम. ओके, नाउ agriculture is the main occupation in all part of our country. It is mainly depend on rainfall. The rainfall received in all region is not the same. Agriculture जो है, हमारे खेती वगैरह सब है, वो किसके ऊपर इम्पोर्टेंट है, कंट्रीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंट्रीज है, राइट. तो कंट्री में क्या है, हर कंट्री में सेम बारिश होती है क्या, नहीं, कुछ कंट्री में अलग बारिश होती है, कुछ स्टेट में ज्यादा बारिश होती है, राइट, कुछ स्टेट में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है. सो इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल क्रॉप्स सच राइस, कोकोनट, रागी एंड वरारी आर ग्रोन. तो जब भी हाई रेनफॉल रहता है, तो हाई रेनफॉल हमें सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखाई देता है,
यस, साउथ साइड में तो वहां पे राइस, कोकोनट, रागी मतलब नाचनी, वरारी आर ग्रोन. Wheat, tur and soybean are grown in a region of moderate rainfall. तो wheat, tur and soybean कभी उगते हैं जब थोड़ा थोड़ा बारिश मतलब लो रेनफॉल होता है तभी. जवार बाजरा एंड मोद बीन्स आर ग्रोन इन रीजन लो रेनफॉल. और जवार बाजरा जब एकदम बारिश लो हो जाती है तब ये जवार बाजरा मोद क्या है उगते हैं, ग्रोन होते हैं. To help crops to grow well, good seeds, fertile soil, sufficient sunlight and water are needed. तो जब भी हम ग्रो करते हैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स को तभी क्या चाहिए, पानी प्रॉपर चाहिए, ओके, जमीन अच्छी चाहिए, मट्टी अच्छी चाहिए, इसके अंदर फर्टाइल सॉइल अच्छी चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट, धूप प्रॉपर चाहिए. अगर हम ज्यादा प्रॉपर धूप दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सनलाइट ज्यादा होगी तो वही ऐसे इंग्रेडिएंट जो फूड है वो क्या है, मर जाएगा. According to the season, a variety of grain, fruits and vegetable are grown in the country. तो according to क्या होता है, सीजन जब भी आता है तब वो सीजन में हमें वो वेजिटेबल्स और फूड अवेलेबल होते हैं मार्केट में. नाउ आपको ये एक्टिविटी करना है. लेट्स सी. विजिट द लोकल फ्रूट सेलर, नोट डाउन द नेम ऑफ द फ्रूट सोल्ड इन द शॉप्स, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट विद देम. तो आप अपने मॉम डैड के साथ जाएंगे एक फ्रूट सेलर के पास और आप ये 5 क्वेश्चन वो अंकल को पूछेंगे और नोट डाउन करके लाएंगे. विच फ्रूट आर सोल्ड ऑल ईयर राउंड. पूछना है अंकल पूरे साल आप कौन सा फ्रूट बेचते हैं. यस, तो वो जो फ्रूट का नाम बोलेंगे यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. विच फ्रूट आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन. कौन सा फ्रूट है जो रेनी सीजन में अवेलेबल नहीं होता. तो दैट फ्रूट सेलर विल टेल यू. विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर. कौन सा फ्रूट है जो समर में सेल किया जाता है. यस, समर में मोस्टली वी सी मैंगो, ओके. रेनी सीजन में हमें मैंगो नहीं मिलता है और पूरे साल हम बनाना देखते ही है, एप्पल भी देखते हैं, राइट. इन दिस सीजन आर फ्रूट अवेलेबल इन प्लेंटी. और ऐसा कौन सा फ्रूट है जो टेम्पररी अवेलेबल होता है. यस, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ये हमें टेम्पररी अवेलेबल रहते हैं, पूरे ईयर हमें अवेलेबल नहीं रहते. इन विच सीजन डू वी गेट फीवर फ्रूट्स. ऐसे कौन से फ्रूट है जो हमें फीवर मतलब ऐसे फ्रूट्स अवेलेबल होते. ऐसे कौन से फ्रूट है जो बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं. सो दैट शॉप सेलर will tell you and you have to write down in your notebook. Okay, the fruits is available due to the reason according to the season. Different fruits are available in different season. तो fruit जो है वो season wise available होते हैं. Different season रहेगा तो different fruits available होता है. Okay, now use your brain power. Look at the fruit in the picture. Make a table as shown below. The fruits that are available in each season. You have to see which fruits and you have to make a list कि कौन से fruits है जो full year available होते हैं. Included the name of fruits you know even if they are not shown in the picture. ऐसे कुछ fruits यहाँ पे picture नहीं दिए गए तो आप उनका भी नाम क्या कर सकते हैं, ऐसे बॉक्स बना के लिख सकते हैं.